کہ ملک میں جاری سیاسی صورتحال پر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اراکین صوبائی اسمبلی نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ صوبائی حکومت کے خلاف کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اجلاس کی مزید تفصیلات لیتے ہیں پشاور میں اپنے نمائندے کامران علی سے۔ جی کامران علی، تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ملک میں موجودہ صورتحال اور پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی صدر نجم الدین کی جانب سے پی ٹی آئی کے ارکان کی جانب سے ان کے رابطے کے حوالے سے جو اس خیبر پختونخوا کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی صدارت میں جو ہے وہ اجلاس طلب کیا گیا تھا، اور اجلاس میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو دعویٰ تھا اس کو مسترد کر دیا گیا، بلکہ پی ٹی آئی کے 94 میں سے 80 ممبران نے جو اجلاس میں شرکت کی اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ نہ صرف وہ عمران خان کے ساتھ ہے بلکہ صوبائی حکومت کے خلاف بھی جو سازشیں اور جو احکامات اور اٹھائے جا رہے تو اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے، اور پر انہوں نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ شوکت یوسفزئی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ جو ممبران اجلاس سے غیر حاضر رہے تو کچھ بیرون ممالک میں تھے اور کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے جو اجلاس میں شرکت نہ کر سکے۔ بہت شکریہ کامران علی۔ ایبٹ آباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی عروج پر ہے، امیدوار جلسے اور ریلیاں نکالنے میں مصروف ہے۔ مزید بتا رہے ہیں آج اس کے نمائندے محمد شاہد چودھری۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ایبٹ آباد میں بھی سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ امیدوار جو ہے اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں جگہ جگہ جلسے اور ریلیاں نکال رہے ہیں۔ ضلع ایبٹ آباد کی بات کریں تو 4 تحصیلیں ہیں، تحصیل ایبٹ آباد، تحصیل حویلیاں، تحصیل لورا اور تحصیل لور تنال۔ اس میں جو ہے تحصیل میئر کے لیے ایبٹ آباد میں جو 9 کینڈیڈیٹ ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں، اسی طرح تحصیل حویلیاں میں، تحصیل لورا میں اور تحصیل لور تنال میں تقریباً ان چاروں تحصیلوں میں 40 کے قریب جو ہے وہ کینڈیڈیٹ حصہ لے رہے ہیں۔ یہاں جو ہے زیادہ تر مقابلہ جو ہے چاروں تحصیلوں میں آزاد کینڈیڈیٹ بھی ہیں، لیکن پاکستان کی جو بڑی پارٹیاں ہیں تحریک انصاف اور نون لیگ میں کانٹے دار مقابلہ ہے۔ جی مسلم لیگ، آپ کو بتائیں کہ جہلم میں مسلم لیگ نون کی کارکنوں نے لانگ مارچ کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شہباز بٹ۔ جی بالکل، اپوزیشن جماعتوں نے 25 تاریخ کو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے جو اسلام آباد پہنچے گا۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کا قافلہ 25 تاریخ کو جہلم پہنچ رہا ہے، جس کی قیادت مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف کریں گے، اور جہلم میں ان کے استقبال کی تیاریاں اس وقت عروج پر ہیں۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے عہدیداران کارکنان کی کثیر تعداد جو ہے وہ تیاریوں میں مصروف ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے ضلعی صدر مرزا راشد ندیم موجود ہے۔ بھرپور طریقے سے ہم روز مرہ کی طرح میٹنگیں جاری ہیں ہماری، آج بھی ہماری جو ہے میٹنگ پروگرام چل رہا ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ کا گڑھ ہے اور گڑھ رہے گا۔ اور جی بالکل، یہاں پر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے کارکنان جو ہیں، عہدیداران جو ہیں وہ انتہائی پرجوش ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ 25 تاریخ کو اپنے قائدین کا جہلم پہنچنے پر بھرپور استقبال کریں گے۔ جی شرکپور میں بھی مسلم لیگ نون کے کارکن لانگ مارچ میں شرکت کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے تہماسب سے پلی نقوی سے۔ جی تہماسب سے پلی۔ پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف طریق اعتماد جمع کروا دیا، اس کے بعد پورے ملک میں سیاسی ماحول گرم ہو چکا ہے، اور شرکپور میں مسلم لیگ نون نے اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہی ہے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون لاہور ڈویژن کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ تمام ہمارے ساتھی ایم پی اے ورکر عہدیدار، اور خاص کر کے پہلی دفعہ محسوس کروں کہ عوام جو ہے نا وہ زیادہ اس میں پرجوش ہیں۔ ہم جو لانگ مارچ کی کال دی ہے، ہم اس میں پورے جوش اور جذبے کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اور جگہ جگہ میٹنگ بھی کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی شرکپور کی میٹنگ منعقد ہوئی ہے، جس میں پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کرنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ ہم حکومت کے خاتمے کے لیے اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام آباد بھرپور طریقے سے پہنچیں گے۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ اجاگر کرنے کے لیے تربت کا باہمت شخص 23 دن پیدل سفر کر کے کوئٹہ پہنچ گیا۔ گلزار بلوچ پرعزم ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ مجیب احمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بلوچستان کی سینکڑوں ماؤں بہنوں کی آواز بن کر گلزار دوست بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے 27 فروری کو تنہا تربت سے روانہ ہوا تو راستے میں درجنوں مرد و خواتین اس کے ساتھ ہو لیے۔
पैदल चलने से गुलजार के पांव में छाले पड़ गए, खून बहने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हमने 23 दिन का सफर किया, मुश्किलात जरा बराबर भी नहीं आया, 1% भी नहीं आया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि तुर्बत से जहां तक हम पहुंचे हैं कल रात सरियाब तक, तो ये पूरा बलोच बेल्ट था। तो बलोच बेल्ट से गुजरते हुए एक बलोच को क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं? लापता अफराद बलोचिस्तान के हर दूसरे घर का अलमिया है। इस मामले को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर देखा जाना चाहिए। कैमरामैन बाबर खान के साथ मुजीब अहमद, आज न्यूज, कोयटा। महकमा जंगलात के आलमी दिन पर दुनिया भर में शजरकारी मुहिम शुरू की गई है। सैकड़ों पौधे लगाए गए हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद महमूद से। जी जाहिद। आज महकमा जंगलात का आलमी दिन बनाया जा रहा है। इसी सिलसिला में दुनियापुर में महकमा जंगलात तहसील लोधरा तहसील दुनियापुर के ज़ेरे तमाम शजरकारी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील चौधरी शाहिद इकबाल चीमा मौजूद है। मैं आज आलमी दिन के मौका पर ये क्या पैगाम देना चाहेंगे, हम इनसे जानते हैं। जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक सरसब्ज़ पाकिस्तान जो हमारी कैंपेन चल रही है उसके सिलसिले में और शजरकारी की मुहिम के आलमी दिन के मौके पर मैं तमाम अपने दोस्तों से, किसान भाइयों से ये इल्तमास करता हूँ कि अपनी बड़ी तादाद में आप पौधे लगाएं। हमारा महकमा ज़राअत तौसीह का अमला जो है वो अपने फार्मर के पास जाकर पौधे लगवा भी रहा है और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबल करीब में आप देखेंगे कि जो मौसमियाती तब्दीली के जो बुरे असरात हम पर पड़ रहे हैं इनमें खातर खा कमी होगी। बिल्कुल जी, आपने असिस्टेंट डायरेक्टर चौधरी शाहिद इकबाल चीमा की बात सुनी, जिनका कहना है कि जो शजरकारी मुहिम है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सब शताब मुहिम, इसमें जो है मौसमी तब्दीली पर जो बुरे असरात पड़ रहे हैं ये बड़ी हद तक कमी आएगी। और महकमा जंगलात के जो है आलमी दिन के मौका पर ये पैगाम दे रहे हैं कि हर शहरी अपने हिस्से का पौधा लगा के इस मुहिम को भरपूर हिस्से में कामयाब बनाएं। जी, जंगलात के आलमी दिन पर ननकाना साहब में भी हजारों पौधे लगाए गए। बाबा गुरु नानक फॉरेस्ट में तलबा ने पौधे लगाए। तफसीलात बता रहे हैं चौधरी अफजल हक। ननकाना साहब में जंगलात के आलमी दिन के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 1 बिलियन ट्री सोनामी मनसूबा के तहत बाबा गुरु नानक फॉरेस्ट में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने 3000 से ज्यादा पौधे लगाए। मिल के कोशिश कर रहे हैं कि आज हम यहाँ से 3-4 हजार पौधे लगाएंगे। इन बच्चों के साथ मिलके हम खुद भी इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और दूसरा इस दिन का कंपोनेंट है इन बच्चों के अंदर जो आने वाली जनरेशन है, इन बच्चों ने क्योंकि आने वाले दिनों में अपनी लाइफ में बड़े होके जिम्मेदारियां निभानी है, तो इनको ये रियलाइजेशन कराई जाए, इनको ये एहसास कराया जाए कि जंगल जो है और फॉरेस्ट और दरख्त जो है वो कितने ज्यादा जरूरी हैं। दरिया रावी के किनारे हेड बरलोगी के मकाम पर वाक़या बाबा गुरु नानक फॉरेस्ट में अब तक 1100 एकड़ पर 15 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। अभी मकसद इसका ये है कि न सिर्फ यहाँ पे शजरकारी की जाए जो कि मौसम बहार की शजरकारी है, साथ ही साथ जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो बच्चे हैं, उनको सेंसिटाइज किया जाए कि शजरकारी जो है वो हमारे माहौल के लिए, हमारी मईशत के लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट है। जबकि इस मनसूबे के तहत जिला भर में 8 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। बिलाशुबा दरख्त फ़ज़ाइल आलूदगी के खात्मे और इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। चौधरी अफजल, आज न्यूज, ननकाना साहब। रमजान अल मुबारक की आमद से कबल ही कोयटा में फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मजीद जानेंगे आज उसके नुमाइंदे सुहेल अहमद से। जी सुहेल। जी बिल्कुल, रमजान की आमद से कबल ही कोयटा में फल, फ्रूट, सब्जी फरोख्त हो रहा है, जबकि तूरी 180 रुपए, मटर 140 से लेके 150 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह सेब का जो फी किलो है वो तकरीबन 250 रुपए का है और केले का दर्जन तकरीबन 100 रुपए का फरोख्त हो रहा है, जबकि कीनू जो है 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि रमजान की बात नहीं है, ये जब से डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ है हमें भी महंगा ये मिल रहा है और पीछे से ही ये महंगा आ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर फौरी तौर पर रेटों पर कंट्रोल पाए, चूंकि सब्जी और फ्रूट जो है ये गरीबों का खुराक है, चूंकि दालें और गोश्त वगैरह सारी महंगी हो गई। इसी तरह मुर्गी भी 460 रुपए का किलो फरोख्त हो रहा है। कि लोगों का कहना है कि रमजान से कबल ही हुकूमत को चाहिए कि वो सब्जियों को और जो दीगर अशिया खुर्दनोश है उसमें कमी लाए। जी, जनूबी वजीरिस्तान के कैडेट कॉलेज में सालाना तकरीब का एहतमाम हुआ। कोर कमांडर पेशावर ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए। तफसीलात फारूक महसूद की रिपोर्ट में।
एडेड कॉलेज पिनकई में सजा रंगारंग योम वालदैन, तलबा के मुख्तलिफ करतब और पीटी शो ने प्रोग्राम में खूब रंग जमाए। इससे पहले इस तरह कोई आला इदारा नहीं था और इसमें हम अभी आला मयारी तालीम हासिल कर रहे हैं और जिससे आगे के लिए बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं। 2012 के बाद अभी 2022 चल रहा है, 10 साल गुजर चुके हैं। 10 साल बहुत कम अरसा है, लेकिन इस अरसे में इस कैड कॉलेज ने पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े लोग दिए। आर्मी में लोग गए, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में काफी अचीवमेंट हासिल की इस कॉलेज ने। और इंशाल्लाह हम ये मेहनत जारी रखेंगे और इस तरह ये पाकिस्तान को टैलेंट देते रहेंगे। और ये सब इस कॉलेज की वजह से, क्योंकि ये कॉलेज ने ये टैलेंट पाकिस्तान के सामने लाया है कि वजीरिस्तान में ये टैलेंट मौजूद है। और मसूद और पठान किसी से कम नहीं किसी भी फील्ड में, और हम किसी के साथ भी मुकाबला किसी भी वक्त कर सकते हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कामयाब तलबा में ट्रॉफियां और शील्ड तकसीम किए। तकरीब के इख्तिताम पर कैडेट कॉलेज पिनकई के तलबा ने कबायली डांस अतन का शानदार मुजाहिरा करके शुरका से खूब दाद ली। फारूक महसूद, आज न्यूज, जनूबी वजिस्तान। लाहौर में कॉलेज असातिज़ा का मुतालबात के हक में धरना 15वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन से अब तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राब्ता नहीं किया है। होमा बट की रिपोर्ट देखिए। मिली इत्तेहाद, लेडी हेल्थ वर्कर्स और एपका समेत दीगर तंजीमों की तो सुनी गई और धरने खत्म हो गए, मगर सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने 15 रोज से बैठे कौम के ममारों का मामला हल न हो सका। चीफ सेक्रेटरी से मुज़ाकरात हुए, न ही मुतालबात सुने गए। असातिज़ा कहते हैं अब दोनों अतराफ की सड़कें बंद करेंगे। आज हम इंशाल्लाह ये पूरा रोड बंद करेंगे। हमने पूरे पंजाब से लोगों को बुलवाया हुआ है और नेक्स्ट अगर ये लोग इस तरह नहीं मानते, हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं करते, हम 720 कॉलेजेस बंद कर देंगे। हुकूमती मशीनरी से ना कोई ब्यूरोक्रेट और ना ही कोई वजीर, ना कोई MPM हमारे तक नहीं पहुँचा। ये इनकी बेइज्जती है। असातिज़ा के मुतालबात एक जानिब, मगर धरने ने शहरियों को मुश्किल में डाल रखा है, जिन्हें तवील सफर पैदल करना पड़ रहा है। हर हफ्ते यहाँ ये तमाशा लगा रहता है। महीने में पता नहीं कितनी दफा लोग आते हैं, ना इनका कोई हल निकालते हैं। हम इतने लोग परेशान हैं, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। मैं तो इस कदर परेशान हूँ, गाड़ी मेरी इधर खड़ी होती है, यहाँ से हमें चल के सारा जाना पड़ता है और हमारे लिए परेशानी है। असातिज़ा 1 घंटे कॉलेजेस में भी क्लासेस का बाइकआउट कर रहे हैं और आज से तमाम कॉलेजेस में रैलियां भी निकाली जाएंगी। सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने असातिज़ा का 15 रोज से धरना जारी है। सड़कों की बंदिश ने शहरियों को पैदल सफर करने पर मजबूर कर रखा है। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा बट, आज न्यूज लाहौर। लाहौर में स्टेट बैंक के सामने डकैती मुजाहिमत पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने गैर कानूनी नए नोट की फरोख्त की रोकथाम का भी फैसला कर लिया है। गजनफर खान की रिपोर्ट। लाहौर में गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक के सामने दिन दिहाड़े कत्ल और गैर कानूनी नए नोटों की फरोख्त मुतलका अदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान छोड़ गया। पुलिस ने मकतूल अतीक के कत्ल का मुकदमा भाई मोहसिन अली की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया है। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का कहना है कि नए नोटों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त पर स्टेट बैंक से राब्ता कर रहे हैं। जहाँ तक ये बिजनेस का ताल्लुक है तो हम इसमें स्टेट बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस तरह का जो बिजनेस मशरूम हो रहा है या ग्रोथ हो रही है तो वो उसका कोई प्रिवेंटिव एक्शन ले सकें। हाईएस्ट लेवल पे अच्छी बेस्ट टीम्स हमने इसमें लगाई हुई हैं। बैंकों के बाहर नए नोट और प्राइस बॉन्ड फरोख्त करने वालों ने काम को गैर कानूनी तस्लीम करते हुए कहा कि घर का चूल्हा चलाना मजबूरी है। खतम आ गई, ये काम नहीं करना चाहिए। बच्चे रोजी वास्ते ये काम कर देते हैं। ਵੱਡੇ पैमाने से गैर कानूनी काम होने वाले तो बंद करो। रोटी कमानी ना गरीबों मजदूरी होती है तो 20-30 से बचते बस इनको एक काफी बचे। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का कहना है कि CCTV की मदद से मुलजिमान को ट्रेस किया जा रहा है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। रेमिंगटन फार्मा पाकिस्तान का एक और एजाज, इंसदादे कोरोना के लिए 2 नोवेल ओरल एंटी वायरल अद्वियात के जेनेरिक वर्जन की तैयारी और बरामदात करने के लिए लाइसेंस मिल गया। मारूफ पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनी रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल को मेडिसिन पेटेंट पोल की जानिब से
دنیا میں انسداد کورونا کی پہلی 2 کھانے والی ادویات کے جینرک ورژن کو تیار اور ترسیل کرنے کے لیے لائسنس جاری کیا گیا ہے، جس کے بعد عالمی اجازت حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کرنے والی یہ واحد پاکستانی کمپنی بن گئی ہے۔ لائسنس دہندگان کی دوڑ میں بھارت سمیت دیگر ممالک کی کمپنیاں بھی شامل تھیں۔ چیئرمین ریمنگٹن فارماسیوٹیکل ڈاکٹر عبدالقدیر کھوکھر کا کہنا ہے، ریمنگٹن فارماسیوٹیکل گزشتہ 40 سال سے کم قیمت ادویات کی فراہمی میں پیش ہے۔ ٹنڈو اللہ یار کے میرواں روڈ پر سیوریج کا پانی جمع ہونے سے سڑک ندی میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے عبداللطیف قائم خانی سے۔ جی اس وقت میں جو ہے میرواں روڈ پر موجود ہوں، جو کہ ٹنڈلار کا مرکزی روڈ ہے۔ تیل کی ٹنکی سے لے کر کے میرواں روڈ، راما پیر مندر اور مین قبرستان بھی اسی روڈ سے جاتا ہے۔ آج جو ہے یہ روڈ جو ہے ندی کا منظر پیش کر رہا ہے، یہاں پر نہر کی طرح پانی بہ رہا ہے، نکاسی ہے آپ کا۔ اس سلسلے میں یہاں پر مکین بھی موجود ہیں، شہریوں سے معلوم کرتے ہیں عذاب جو ہے کب سے بھگت رہے ہیں۔ جی تقریباً 1 سال ہو گیا ہے اور یہاں پر یہ گندے پانی کا روز کا معمول بن چکا ہے جمع ہونا، اور اب ہم اس سے تنگ آ چکا ہے علاقہ مکین۔ اگر کل ہمارے اس گندے پانی کو یہاں سے نہیں نکالا گیا اور انتظامیہ نے ہماری آواز کو نہیں سنا تو منگل کے دن انشاءاللہ 11 بجے ہم روڈ کے اوپر دھرنا دیں گے۔ میرواں روڈ گزشتہ تقریباً 8-9 ماہ سے یہی کنڈیشن، یہی حالت پیش کر رہا ہے۔ ہم متعدد دفعہ انتظامیہ کو بتایا، ہم نے ایک وفد بنا کر 4 دن پہلے ایڈمنسٹریٹر صاحب سے بھی ملاقات کی، انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ شب برات سے پہلے یہ روڈ کلیئر ہو جائے گا۔ جی ان کا کہنا ہے کہ یہ روڈ بھی جو ہے منظور ہے، ڈینیج سسٹم بھی موجود ہے، لیکن جو گزشتہ 1 ہفتے سے ہم جو ہے یہ ڈینیج کے پانی کا عذاب بھگت رہے ہیں۔ جی صہیونڈ شریف میں حضرت لال شہباز قلندر کے عرس کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں۔ تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے فہد جامری اپنی اس رپورٹ میں۔ میرے لال کی جد دیکھوں تتلال، لالی دیکھن میں گئی میں بھی ہو گئی لال۔ سیون شریف میں ایک بار پھر رونقیں بحال ہونے جا رہی ہیں۔ ہو سندھڑی دا ہو سیون دو سکی شہباز قلندر، حق دمادم ہست قلندر، قلندر شاہ قلندر۔ کورونا وبا کے باعث 2 سال سے منسوخ عظیم صوفی بزرگ قلندر لال شہباز کا سالانہ عرس مبارک ایک بار پھر منعقد کیا جا رہا ہے۔ عرس مبارک کے بڑے اجتماع کی تیاریاں جاری ہیں۔ درگاہ سمیت شہر بھر میں غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہباز میلہ کمیٹی کے چیئرمین ڈپٹی کمشنر جامشورو کیپٹن ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ کہتے ہیں، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 35 سے 40 لاکھ افراد منیمم 7 ڈیز میں 10 ڈیز میں سیون شہر میں زیارت کے لیے آئیں گے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو 2019 میں تیاریاں تھیں ان سب کو 200% پہ لے کے جایا جائے۔ ہیلتھ اینڈ میڈیکل کیمپس جو ہیں، ہیٹ سٹروک کیمپس پہلے 40 تھے، اب ہم انہیں 70 کے قریب لے کے چلے گئے ہیں۔ اسی طرح تمام انتظامات کو جو ہے وہ ڈبل کیا گیا ہے۔ عرس مبارک کے موقع پر ملک بھر سے 40 لاکھ زائرین کی آمد متوقع ہے۔ سب سے بڑے اجتماع کے لیے بڑا سیکورٹی پلان تشکیل دیا جا چکا ہے۔ ایس ایس پی جامشورو جاوید بلوچ کہتے ہیں، سیون شہر کو 5 سیکٹروں میں ڈیوائیڈ کر دیا، ان 2 سیکٹروں کو ہم نے 8 زون میں تبدیل کر دیا۔ درگاہ کے سراؤنڈنگ کے اندر ہم نے 5 کیمپ بھی قائم کیے ہوئے جو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ دیکھیں گے، اور دوسرا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو فوراً وہ کیمپ پر آئیں گے۔ پورے شہر کے اندر 150 پلس کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اس کے اندر 6 ڈرون کیمرے شامل ہیں۔ عرس مبارک کی تقریبات 22 مارچ سے شروع کی جائیں گی، لیکن زائرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ فہد جامری، آج نیوز، جامشورو۔ غزر میں ہر سو بہار کے رنگ بکھر گئے۔ بادام اور خوبانی کے درختوں پر پھولوں نے علاقے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے دودانہ شیر۔ آج بالکل بلتستان کا لگزر وہ ضلع ہے جہاں کے چاروں موسم سیاحوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ بہار کی آمد کے ساتھ ہی یہاں کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بادام، خوبانی اور جو سیب کے جو درخت ہیں ان پر پھول کھلنے کی وجہ سے علاقے کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی ہے، اور اس وقت بڑی تعداد میں سیاحوں نے اس علاقے کا رخ کر دیا ہے اور یہاں کے جو موسم ہے اسے خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ میرے پاس منظر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ بادام کا جو درخت ہے اس پر پھول کھلے ہیں اور علاقے کی خوبصورتی بڑھ گئی ہے، اور ہم یہاں پر مقامی سیاح سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔
चाहते हैं। हम एक ऐसे खुशकिस्मत खिते में रहते हैं जहाँ साल के चारों मौसम जो है उनको करीब से देखने का मौका मिलता है। इस वक्त पूरी वादी में फूल खिले हुए हैं, एक खूबसूरत माहौल है, यहाँ पे लोगों की चहलकदमी है और यहाँ पे शजरकारी का एक जो मौसम है वो शुरू हो चुका है। लोग खेती बाड़ी में मसरूफ है। यहाँ का जो मुकामी सयाह है इसकी बात आपने सुन ली। बल्चिस्तान का डिस्ट्रिक्ट गिजर जिला है जहाँ पर लाखों की तादाद में फलदार दरख्त मौजूद है और आज आप देख रहे हैं कि दरख्तों पर जो फूल नजर आ रहे हैं इस इलाके की खूबसूरती मजीद दोबाला हो गई है और यहाँ के जो लोग हैं ये सयाहों को भी इस खूबसूरत मौसम को देखने के लिए दावत नजारा देते। हादसात और बीमारियों के दौरान मरीजों के लिए ताज़ा खून नई जिंदगी की बुनियादी फराहम करता है और कोयटा में इस हवाले से 12 रोजा ब्लड कैंप लगाया गया है। अहवाल क्या है बताएंगे मोहम्मद खालिद। जी मोहम्मद खालिद। कोयटा के मुकामी ब्लड बैंक में 12 रोजा खून के अतियात जमा कराने का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद थैलेसीमिया के मरीजों और हादसात में जख्मी होने वालों को बर वक्त खून की फराहमी यकीनी बनाना था। इसलिए कि लोगों के पास सब चीज होते लेकिन खून नहीं किसी को मिल रहा है, पैसे होते हैं खून नहीं होता है, इसलिए हम लोग भी हमारे साथ तो 1297 तलस्मिया बचे हैं और वैसे और बहुत सी बीमारी जो मरीज की खून की जरूरत होती है वो ज्यादा है। हर मर्द जन 18 से 65 साल तक खून साल में 4 दफा अपना खून अतियत कर सकता है। आपके खून की वजह से 3 जिंदगियां बच सकती है। खून अतिया करने का शऊर आम करके दहशत गर्दी और हादसात में जख्मी होने वालों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, क्योंकि सबसे अफजल काम इंसान की जिंदगी बचाना ही है। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज, कोयटा। ठट्टा के कदीमी शहर जंगशाही के मकीनों ने सुई गैस की अदम फरहमी के खिलाफ रैली निकाली। तफसीलात अमर लाल की रिपोर्ट में। ठट्टा के कदीमी शहर जंगशाही और गोस्तान के गांव में रहायशियों का सुई गैस और दीगर बुनियादी सहूलियात न मिलने के खिलाफ मकली पार्क से नेशनल प्रेस क्लब मकली तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मुजाहिरीन ने बुनियादी सहूलियात के लिए प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी की और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना दिया। जो यूनियन काउंसिल जंगशाही में वाक़ है, हमारे गाँव में 1000 घर है, 5000 आबादी रखने वाला जो गाँव है, हमारे गाँव के 30 फुट के फासले पे सुई गैस की लाइन गुजर रही है और जो इर्द गिर्द के तमाम गांव में सुई गैस पहुंच चुका है। मामा अली नवाज और कोस्तान को गैस दो, ये हमारा राइट है। ये नहीं कहते कि हम बिल नहीं देंगे, हम मीटर नहीं लगाएंगे, हम सब फॉर्मेटिव पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हम तैयार हैं। शाहनवाज बरोही, इमरान जोखियो, इरफान जोखियो, गुलाम हुसैन जोखियो ने कहा है कि हमारा गांव कदीमी है मगर इस इलाके में आज तक किसी किस्म की बुनियादी सहूलियत नहीं है। अस्पताल, रोड, रास्ते, पानी और दीगर सहूलियत से महरूम है। मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ वोट लेकर चले जाते हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि सुई के समेत बुनियादी सहूलियत फराहम की जाए, नहीं तो हम सिंध असेंबली के सामने धरना देंगे। खैबर की तहसील बाड़ा में तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल की हालत जार और तलबा की मुश्किलात बता रही हैं जाकिर आफरीदी अपनी इस रिपोर्ट में। तालीमी इमरजेंसी का निफाज और इस्लाहात के दावे भी जिला खैबर की तहसील बाड़ा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुलाब खेल कले की हालत ना बदल सकी। की बिल्डिंग है, ना ही टेंट और खेमे और दीगर स्कूल का सामान भी नहीं है। कुल्ले आसमान बैठे ये बच्चे तालीम के मतलाशी है। मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुलाब क्लास 4 का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे बहुत सी मुश्किलात है। हुकूमत से मुतालबा करे कि हमें स्कूल का बिल्डिंग बना जाए। अगर बिल्डिंग बनाने के लिए वसाइल नहीं है तो हमें बैठने के लिए टाट्स, खेमा टाट्स और बिजली फराहम किया जाए। जमाना बदामनी में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुलाब खेल कले तबाह हुआ था जो आज तक ना बन सका। बारिश में स्कूल के तलबा को छुट्टी दी जाती है। तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर बिल्डिंग बनाने के वसाइल मौजूद नहीं है तो कम अज कम खेमे और बैठने के लिए कुर्सियां ही फराहम कर दे। जाकिर अफरीदी, आज न्यूज, बाड़ा। गर्मी शुरू होते ही बिजली की आंख मचोली भी शुरू हो गई। जलालपुर पीरवाला में कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर से। मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। मौसम कोई भी हो, आवाम जो है जलालपुर पीरवाला की हर हाल में परेशान है। सर्दियां शुरू होते ही गैस के प्रॉब्लम होता है और जब अब जो गर्मियां शुरू हो रही हैं तो आंख मचोली जो बिजली की है वो मुसलसल जारी है। 2-2 घंटे 3 घंटे बिजली नहीं होती। जो शहरी हैं वो शदीद परेशानी में मुब्तला है और जो हुकूमत है वो अपनी कुर्सी के चक्कर में है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं।
जी जैसे सर्दियाँ थी तो गैस नहीं था, अब गर्मियाँ आते ही और 5-5, 6-6 घंटे के लिए लोड शेडिंग की हुई है। वापडा वालों ने कोई सुनने वाला नहीं है, शदीद गर्मी है और शदीद परेशानी है। और हुकूमत की है, वो हुकूमत अपनी कुर्सी के चक्करों में कुर्सी खेल रही है। हमारी यही अपील है कि लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। जी बिल्कुल, जो शहरियों की परेशानियां हैं वो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर दूर करे, क्योंकि जो शहरी हैं वो हर हाल में परेशान रहते हैं। इनकी परेशानी दूर करना हुकूमत का फर्ज है। जी आपको बताएं कि खानेवाल में स्पोर्ट गाला का एहतमाम किया गया है। मैराथन रेस और क्रिकेट मैच DC11 ने जीत लिया है। तफसीलात क्या हैं बताएंगे मोहम्मद अशरफ अपनी इस रिपोर्ट में। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर स्पोर्ट्स गाला की तकरीबात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इस हवाले से निजी फैक्ट्री की जानिब से मैराथन रेस का एहतमाम भी किया गया, जिसकी क़ियादत ADCR इफ्तिखार शिराजी ने की। रेस में सरकारी अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान, नौजवान एथलीट्स समेत सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की, जो सिटी गेट से शुरू होकर जिन्ना लाइब्रेरी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। 1.5 किलोमीटर रेस कबीरवाला के आदिल शेर ने जीत ली, जबकि खानेवाल से ताल्लुक रखने वाले अबादुर रहमान और उस्मान ने बिल तरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले अफराद को कैश प्राइज और ट्रॉफियां भी दी गईं। दूसरी जानिब स्पोर्ट्स गाला के सिलसिला में शबीर स्टेडियम खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी और DPO सैयद नदीम अब्बास की कप्तानी में DC11 और DPO11 के माबैन नुमाइशी क्रिकेट मैच भी खेला गया। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज पहले हुई हैं, मुकाबले हुए हैं और अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइनल्स हुए हैं इस हफ्ते। तो उसी सिलसिले में आज हमने DC11 DPO11 का एक एग्जीबिशन मैच भी ऑर्गेनाइज किया है और कल से 3 दिन के लिए फिर हमारी जश्न बहारा की एक्टिविटी, जिसमें फ्लावर शो, फूड स्टॉल्स और उसके बाद टेंट पैकिंग है, नेजाबाजी सैटरडे को। DC11 ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 10 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर DPO11 को 165 रन का टारगेट दिया। हदफ के ताकब में DPO11 की टीम 129 रन बना सकी। अच्छा मैच चल रहा है, दोनों टीम्स और दोनों टीमों के जो सपोर्टर्स हैं बहुत एक्साइटेड हैं और टारगेट भी काफी मिला है, लेकिन हमारी टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी पेस के ऊपर इसको फॉलो कर रही है। मैच के इख्तिताम पर DCO और DPO ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। मैं कभी आपको बताएं, PTI की कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अरकान IG सिंध के दफ्तर के बाहर गिरफ्तारी देने पहुंच गए हैं। PTI के अरकान ने IG ऑफिस के बाहर धरना दे दिया है। इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे जुनैद जावेद से। जी जुनैद, इस वक्त क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन बताइएगा। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ अरकान असेंबली भी अपनी गिरफ्तारियां देने के लिए IG ऑफिस के बाहर पहुंच चुके हैं, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके बावजूद यहाँ पर जो अरकान असेंबली है उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। अरकान का मुतालबा है कि फौरी तौर पर सबसे पहले तो तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया जाए और उसके बाद तमाम कारकुनान को रिहा किया जाए। उस बसूरत दीगर जो है ये तमाम अफराद जो है कारकुनों के साथ यहाँ पर IG ऑफिस पे कल धरना दे सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर धरना खत्म हो चुका है, पुलिस जो है यहाँ से जा चुकी है और जो ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल थी उसको भी अब बहाल कर दिया गया है। हलीम आदिल शेख की तरफ से ये कहा गया है कि कल तक का अल्टीमेटम है और पुलिस के पास भी और सिंध हुकूमत के पास भी कि वो अपने फैसले तब्दील करे और कारकुनों को। PTI के कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अरकान IG सिंध के दफ्तर के बाहर गिरफ्तारी देने पहुंच गए। तफसीलात दे रहे थे जुनैद जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे बलूचिस्तान के 22 अजला में लशमीना नामी बीमारी के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। 3 माह के दौरान 3000 से ज्यादा अफराद इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। अभी तक मुतासरा इलाकों में स्प्रे मुहिम नहीं चलाई जा सकी। मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा आज न्यूज मोहम्मद खालिद। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के डायरेक्टरेट में डायरेक्टर मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर खालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो नया इशू आया है बलूचिस्तान के 22 अजला में सैंड फ्लाई या सहराई मक्खी के काटने से मुतासर होने वाले अफराद का, तो इसके लिए क्या रोकथाम की गई है और ये इसकी अफजाइश की वजह क्या है? जी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये इसको कोटोनियस लेशमिनियासिस कहते हैं, सालदाना मकामी लैंग्वेज में इसको कहते हैं। ये एक फीमेल सैंड फ्लाई के बाइट करने से या काटने से होती है और अनफॉर्चुनेटली पहले ये 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट्स में तक महदूद था ये जो बीमारी। अब 22 से 23 डिस्ट्रिक्ट्स बलूचिस्तान में ऐसे हैं जहाँ पे इसके बाइट के केसेस हमें DHIS जो हमारा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके थ्रू ये केसेस हमें रोजाना या हफ्तावार आप कह सकते हैं उसकी बुनियाद पे हमें रिपोर्ट हो रहे हैं। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि रोजाना की बुनियाद पे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और रवा बरस
1 जनवरी से अब तक 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इसके लिए स्प्रे के लिए भी मलेरिया डायरेक्टरेट लिख चुका है हुकूमत को और मुतल्लिका इदारों को, और इसके अलावा इसका जो एक मखसूस इंजेक्शन है उसकी दस्तियाबी के लिए भी लिखा गया है, लेकिन महदूद वसाइल की वजह से वो अवेलेबल नहीं हो सके, जिसकी वजह से इसकी रोकथाम में भी मुश्किलात का सामना है। जी। गजर के इलाके बदसवात में ग्लेशियर टूटने से बनने वाली झील में स्पिलवे बनाने का जायजा लेने डिप्टी कमिश्नर अपनी टीम के हमरा पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे दुर्दाना शेर से। जी दुर्दाना, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं जिला गजर के तहसील इश्कोमन के बलाई गाँव बदसवद में मौजूद हूँ। 2018 में बदसवद में मौजूद ग्लेशियर फटने की वजह से यहाँ पर दर्जनों जो रिहायशी मकानात थे वो सैलाबी वाले में बह गए और एक यहाँ पे मसनूई झील बन गई और जो मुतासरीन थे वो महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो गए। आज डिप्टी कमिश्नर गजर ने इस इलाके में स्पिलवे की बनाने के हवाले से यहाँ पे पहुंचे थे। उनका कहना है कि चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान ने बेकायदा तौर पर अहकाम जारी किए हैं कि वो जाकर यहाँ जायजा ले लें। आज उन्होंने यहाँ आकर इस स्पिलवे का हवाले से जायजा लिया है। इनके साथ इंजीनियर्स आए हैं। हम डिप्टी कमिश्नर से इस हवाले से तफसीली बात कर लेंगे। आज हम ये बदसवद झील का दौरा कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसका मकसद ये है कि इस झील का विजिट किया जाए और इसका स्पिलवे को खोलने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, इसके करने से नुकसानात और इसके फायदे दोनों देख कर कदम उठाना है। तो डिप्टी कमिश्नर गजर की बातें आपने सुन ली। इनका कहना है कि हमने आज स्पिलवे के हवाले से बाकायदा तौर पर यहाँ आकर जायजा लिया हुआ है और हम देख रहे हैं कि आगे की जो आबादी है उनको भी नुकसान न पहुंचे। अगर स्पिलवे बनाने के लिए अगर इंजीनियर्स वगैरह जो है मंजूरी देते हैं तो स्पिलवे की तामीर अमल में लाई जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने माहौल की बेहतरी के लिए ग्रीन यूथ मूवमेंट का आगाज कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क में ग्रीन यूथ मूवमेंट का आगाज इस्लामाबाद के कन्वेंशन हॉल में तकरीब हुई, जिससे वफाकी वजीर असद उमर समेत मुतअद्दिद ने खिताब किया। 25 लाख नौजवानों को शामिल करके, जिसमें से 65,000 को मुस्तकिल रोजगार भी मिलेगा, इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। मंसूबे के तहत मुल्क भर से 21 लाख नौजवानों को माहौल दोस्त मंसूबों में शामिल किया जाएगा और 65,000 से ज्यादा मुलाजमत के मौके फराहम किए जाएंगे। स्कूल ऑफ लीडरशिप फाउंडेशन नौजवानों को मुतहर्रिक करने और 137 सरकारी यूनिवर्सिटियों में ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब के क़याम के जरिए ब्रिटिश काउंसिल को मंसूबे में मुआवनत फराहम